எத்தனை பேர் தமிழ்காரங்க இருக்கிறீங்க? நிறைய இருக்கிறீங்களா? அரே வா, சத்தமே காணும். ஹல்லேலூயா சொல்லமா? எத்தனை பேர் हिंदीக்காரங்க இருக்கிறீங்க? कितने लोग हैं हिंदी लोग? हालेलुया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं 2 चुटकुले बोलना चाह रही हूँ. ओके, आई थिंक चुटकुले ना विड़ का दया, करेक्ट? ऑल राइट. ஒன்று வந்து தமிழ்காரங்களுக்கு, एक है हिंदी लोगों के लिए, क्योंकि ये अंदर तैयारी कर रहे हैं ना, जब तक तो हमें थोड़ा सा टाइम वो करना पड़ेगा. சரி, தமிழ்காரங்களுக்கான சுட்குலே விடுகதை யார் சொல்றீங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? நடனம் ஆடுகிற ஒரே விலங்கு எது? சாரி, வேற எனிபடி? மயில் இல்லை, மயிலே கிடையாது. யானை எப்படியா நடனம் ஆடும்? யார் அந்த மனுஷர் அங்க? வேற யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்களே, இங்க எனக்கு காதுல விழுந்துச்சு. ஆடு. ஆடுதான் ஆடுதில்ல, அதை மறந்துட்டீங்களே. மயில் கரெக்டு தான், ஆனால் நான் அந்த வார்த்தைக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆடு. சரி, अब हिंदी वालों के लिए एक चुटकुले, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा. देखो हिंदी में लिख के रखी हूँ, फिर भी तो पढ़ना ज़रूरत है. विनोद नाम का एक लड़का था, ठीक है? वो शादी पे गया और शादी पे साइकिल का ब्रेक हाथ में लेके नाच रहा था. और तो एक बाराती था और वो बाराती ने पूछा, भाई तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है करके. तो उसने क्या जवाब दिया होगा? चलो ये तो पुस्की हो गया ब्रेक. आप लोगों ने तो जवाब ही दे दी. ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. ऑलरेडी एट द बैक, ऑलरेडी बोल दिया उन्होंने. अभी शुरुआत में हमारा जल विहार के चर्च के बच्चे आके एक ओपनिंग डांस करेंगे, फिर हम मेन प्रोग्राम में जाने वाले हैं. थैंक यू. மனுக்குலத்தை காக்க வந்த மகாராஜனே, இந்த மானிடன் மேல் அன்பு வச்ச மகாதேவனே. மனுக்குலத்தை காக்க வந்த மகாராஜனே, இந்த மானிடன் மேல் அன்பு வச்ச மகாதேவனே. எந்தன் பாவங்களை போக்க வந்தவரே, எங்களை ரட்சித்து மீட்க வந்தீரே. உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம். உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம். உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். மகிமையின் தேவன் நீர்தானே, அந்த மகிமையை எங்களுக்காய் துறந்தீரே. மகிமையின் தேவன் நீர்தானே, அந்த மகிமையை எங்களுக்காய் துறந்தீரே. மாட்டு தொழுவத்துல பிறந்தீரே, எங்க மனசுல குடியேற வந்தீரே. மாட்டு தொழுவத்துல பிறந்தீரே, எங்க மனசுல குடியேற வந்தீரே. உங்க அன்புக்கு ஈடாக என்ன கொடுப்போம், நீங்க சொல்லும் வார்த்தையை கேட்டு நாங்க நடப்போம். உங்க அன்புக்கு ஈடாக என்ன கொடுப்போம், நீங்க சொல்லும் வார்த்தையை கேட்டு நாங்க நடப்போம்.
பார்த்து ஓடி போகுதே. பாவ இருளிங்கு பயந்து போகுதே, எங்கள் மெய்யான ஒளியை பார்த்து ஓடி போகுதே. பரிசுத்த தேவன் இங்கு பிறந்து விட்டீரே, எங்களை பரிசுத்தமாக்கவே வந்து விட்டீரே. பரிசுத்த தேவன் இங்கு பிறந்து விட்டீரே, எங்களை பரிசுத்தமாக்கவே வந்து விட்டீரே. உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம். உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம். உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். மனு குலத்தை காக்க வந்த மகாராஜனே, இந்த மானிடன் மேல் அன்பு வச்ச மகாதேவனே. மனுக்குலத்தை காக்க வந்த மகாராஜனே, இந்த மானிடன் மேல் அன்பு வச்ச மகாதேவனே. எந்தன் பாவங்களை போக்க வந்தவரே, எங்களை ரட்சித்து மீட்க வந்தீரே. உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம். உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம். உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம். உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம். உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். தந்தானே நானே, தந்தானே நானே, தந்தானே நானே, தந்தானே நானே. இவ்வளோ வாலிப பிள்ளைகள் ஜல்விஹாரில் இருக்கிறாங்கன்னு யோசித்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ அருமையாக இருக்கு இல்லையா? எவ்வளோ வாலிப பிள்ளை எவ்வளோ அழகாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்திருக்கிறாங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு த होल टीम. अब हम एक्चुअल प्ले देखने वाले हैं. प्ले का नाम है पिता का प्यार, अ फादर्स लव. क्रिसमस ऐसा सीज़न है हम सिर्फ यीशु मसीह को याद करते हैं, राइट? एवरीथिंग इज अबाउट जीसस क्राइस्ट. बट एक वचन, बाइबल वचन ऐसे बताता है, जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16 हिंदी में ऐसे बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. तो अब हम जितना भी यीशु मसीह के बारे में हम बोलते हैं, बात करते हैं, उसका मेन पर्सन, द कोर इज द फादर. इट वॉज बिकॉज ऑफ अ फादर्स लव. पिता देखते रहे. मैंने इतने सारे प्रॉफिट्स को भेजा, मैंने इतने सारे लोगों को भेजा, देवदूत को भेजा, सबको मैंने भेजा, मगर ये लोग सुधरने वाले से नहीं थे. ये लोग पापी थे, पाप करते रहे और पापी ही रहेंगे. फाइनली पिता का हार्ट, बिकॉज ही कैन नॉट सी अस नॉट बीइंग इन हेवन, हम हेवन में ना हो, ये पिता देख नहीं पा रहे थे. वो चाह रहे थे हम भी उनके साथ हो. मैंने इतने लोगों को भेजा और इतने सारे लोगों को इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. अब मैं क्या करूं? मेरे पास लास्ट एक ही थी चीज़ है जो मैं दे सकता हूँ. मैं सब कुछ दे दिया, प्रॉफिट्स दे दिया, एंजल्स दे दिया. लास्ट ऑल ही हैड वॉज हिज ओनली बिलवड सन. अपना एकलौता पुत्र उन्होंने भेजा. तो आज का प्रोग्राम इज अबाउट दैट फादर्स लव. एक पिता का जो प्यार था, प्रेम था हमारे ऊपर, जो हम बिल्कुल ही अनवर्दी थे, हमें ये प्रेम नहीं मिलना था, बट पिता ने अपना सब कुछ दे दिया. उनके पास आखिर में एक ही चीज़ था, दैट वॉज जीसस क्राइस्ट, और उसको भी हमारे लिए दे दिया. चलो हम देखते हैं. दिस प्रोडक्शन इज़ मेड बाय ऑल आवर अडल्ट्स. हमारे चर्च के बड़े लोग हैं, उसमें टीनेजर्स हैं, छोटे लोग हैं, यूथ है, और कई लोग तो प्रोफेशनल्स हैं जो है इसमें, अंडर द लीडरशिप ऑफ पास्टर जेसन पॉल. लेट्स ऑल सिट बैक एंड एंजॉय. थैंक यू. सबको नमस्कार, सबका स्वागत है. अरे ये संसार कैसा होता है?
परमेश्वर ने ये जगत को खूबसूरत बनाया और ये सूरज, चांद, तारे और पृथ्वी पे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब इतना खूबसूरत बनाया। लेकिन इस पृथ्वी पे मनुष्य को बनाया और उसने पाप करके परमेश्वर से दूर चला गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? और इस पाप के कारण ही मनुष्य एक दूसरे से नफरत करने लगा, एक दूसरे से लड़ने लगा, एक दूसरे की हत्या करने लगा और इस कारण मनुष्य ने अपनी शांति और खुशियों को खो दिया। अरे, परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है इस इंसान के लिए जहाँ कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, प्रेम हर तरफ और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब इस मनुष्य को कौन समझाए और स्वर्गीय पिता के प्रेम को ये लोग कैसे जानेंगे? मैंने इस संसार को बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि वो मेरे प्रेम में और मेरे संगति में बने रहे। परंतु इस मनुष्य ने पाप करने के कारण मेरे सम्मुख से दूर चला गया। मैं इसे वापस लाऊंगा। मैं अपनी आज्ञाओं को इन्हें दूंगा कि वो उसका पालन करें और मन फिराए और लौटकर मेरे पास आ सके। और परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को देने के द्वारा मूसा को भेजा। जब परमेश्वर के लोग मिस्र की बंधुआई में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने बहुत बड़े चमत्कारों के द्वारा, अद्भुत कार्यों के द्वारा मिस्र में से, उन बंधुआई में से लोगों को बाहर लाया और अपनी 10 आज्ञाएं उन्हें दी कि वो उसका पालन करें और पाप से मन फिराए और परमेश्वर के पास आ सके। लेकिन मनुष्य उन आज्ञाओं को भूल गया, फिर से पाप की ओर बढ़कर परमेश्वर से दूर हो गया। इस मनुष्यों ने मेरे चमत्कारों को भी भुला दिया और मेरी दी हुई आज्ञाओं को भी भुला दिया। फिर से ये पाप की ओर लौट गया। चलो, मैं अब इनके लिए न्याय करने वालों को भेजूंगा और ये समय समय इनका न्याय करेंगे और इनको परमेश्वर के राह पर चलाने के लिए इन्हें सिखाएंगे। परमेश्वर ने कई न्याय करने वालों को भेजा और उसमें से एक देबोरा थी कि मनुष्य पाप से मन फिरा सके और परमेश्वर पिता के राज्य में फिर प्रवेश कर सके। लेकिन हर बार न्याय करने वालों के चले जाने के बाद मनुष्य फिर परमेश्वर के भय को भूल गया और फिर उसी पाप की जिंदगी में लौट गया। मैंने मनुष्य को बचाने के लिए, उस पाप की जिंदगियों से वापस पवित्रता में लाने के लिए अपनी आज्ञाओं को दिया, लेकिन वो नहीं बदले। फिर मैंने न्याय करने वालों को भेजा, लेकिन फिर भी वो अपनी गलतियों से नहीं बदले और फिर से उसी पाप में वो लौट गया। अब मैं अपने लोगों में से राजाओं को लाऊंगा कि वो उन पर अधिकार करे और उन्हें मेरे भय में और मेरी आराधना में अगुवाई कर सके। और परमेश्वर ने कई सालों तक राजाओं के अधिकार के द्वारा इज़राइल को चलाया। और दाऊद जो हर एक राजाओं में से श्रेष्ठ था और परमेश्वर पिता का आराधिक था, इज़राइल को परमेश्वर के आज्ञाओं अनुसार चलाया। लेकिन उसके बाद जितने भी राजा आए, वो लोग परमेश्वर के आज्ञा अनुसार नहीं चले और इज़राइल के राज्य के अंदर ही अन्य देवी देवताओं के स्थापनाओं को बनाया और परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया। मैं इस मनुष्य से काफ़ी निराश हूँ और इन राजाओं से भी। इन्होंने ना ही मेरी आज्ञाओं को माना और उनके अनुसार चले
और इन मनुष्यों को भी मेरी आज्ञाओं पर ना चलना सिखाया। अब मैं भविष्यवक्ताओं को भेजूंगा कि वो इनसे बात करे, मेरे वचनों के द्वारा उनका मन बदले और मेरे प्रेम की ओर लौट कर आ सके। परमेश्वर ने एलिजा भविष्यद्वक्ता को भेजा कि वो राजाओं को और इज़राइल के लोगों को मन फिराने को कह सके। एलिजा के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को भेजा और एलिजा ने बाल के सारे आराधकों को मार डाला। इज़राइल के लोग और राजा परमेश्वर के भय में चलने लगे। लेकिन थोड़े समय बाद फिर सब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को भुला दिया और पाप में लौट गए। मैं इन मनुष्य को अपने प्रेम कैसे बता सकूं? इनको पाप से मन फिराने के लिए मैंने मूसा के द्वारा आज्ञाओं को भेजा, फिर भी इन्होंने नहीं मन फिराया। मैंने न्याय करने वालों को भेजा, लेकिन उनके द्वारा भी ये नहीं बदले। मैंने राजाओं को भेजा कि वो मेरे प्रेम को और मेरी आराधना में चले, लेकिन फिर वो दूसरी ओर चले गए। और मैंने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा कि वो मेरे वचनों को सुनकर मन फिराए, लेकिन उन्होंने अपने मन ना बदले। अब मैं इन्हें दूसरे राजाओं के हाथ में सौंप दूंगा और ये बंदवाई में जाएंगे। और इज़राइल के लोग फारस राज्य की गुलामी में चले गए। और नामान नामक एक व्यक्ति जो इज़राइलियों से नफरत करता था, उसने राजा से निवेदन किया कि वो इज़राइल के हर एक गुलाम को मरवा डाले। लेकिन परमेश्वर की दया एस्तेर के ऊपर रही और उसने उसे राजा की पत्नी और वहाँ की रानी बनाया। और एस्तेर ने अपनी सहेलियों के साथ इज़राइलियों के लिए प्रार्थना किया और राजा से विनती की कि उसके यहूदी भाई बहनों को ना मारा जाए। और इज़राइल के लोग उस गुलामी में से छुड़ाए गए और फिर लौटकर अपने देश आ गए। अब मैं इन्हें इस गुलामी में से वापस ले आया। मैंने अपने आज्ञाओं को भेजा, लेकिन इन्होंने उसका पालन नहीं किया। मैंने न्याय करने वालों को भेजा, लेकिन इन्होंने मेरा भय नहीं माना। मैंने राजाओं को भेजा, लेकिन फिर भी ये मेरी आज्ञा अनुसार नहीं चले। मैंने भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन फिर भी इनका कठोर हृदय नहीं बदला। अब मैं इन्हें गुलामी में से लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी भलाइयों को भुला दिया। अब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा कि वो जाए और इन्हें इस पाप की बंधुआइयों से बचा सके। आज से लगभग 2000 साल पहले, जब राजा हेरोदेस यहूदिया पर शासन कर रहा था, जो इज़राइल का हिस्सा है, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत गैब्रिएल को एक कुंवारी के पास भेजा जो गलील के नासरत नामक नगर में रहती थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और उसकी मंगनी यूसुफ नाम एक पुरुष से हुई थी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा
और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम का पति यूसुफ, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। और जब वो इन बातों की सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जिस देश में मेरी और यूसुफ रहते थे वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन सम्राट ऑगस्टस साम्राज्य के सभी लोगों की सूची चाहते थे। ऑगस्टस केसर की ओर से आज्ञा निकली है कि सारे रोमी साम्राज्य के लोगों के नाम लिखे जाएं और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाएं। सब लोग नाम लिखवाने अपने नगर को गए। यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में बैतलहम नगर को नाम लिखवाने गया। जब वे बैतलहम पहुंचे तो उन्हें रुकने के लिए जगह खोजने में परेशानी हुई। कोई भी कमरा उपलब्ध नहीं था। एकमात्र स्थान जो उन्हें मिला वो स्थान था जहाँ जानवरों को रखा जाता था। और मरियम ने परमेश्वर के पुत्र यीशु को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। उस रात बैतलहम के पास के मैदान में कुछ चरवाहे रात में अपने झुंड का पहरा दे रहे थे और परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। तब उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिया। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो चरवाहे बैतलहम को गए और वहां जाकर मरियम, यूसुफ और उस बालक को देखा
जिसके बारे में स्वर्गदूतों से सुना था। जब यीशु का जन्म हुआ तो आकाश में एक नया तारा दिखाई दिया। दूर देश के कुछ ज्ञानियों ने उस तारे को देखा और उसका अध्ययन किया। वर्ष के इस समय आकाश के उस हिस्से में एक तारे का अर्थ है कि एक नए और बहुत महत्वपूर्ण राजा का जन्म हुआ है। आओ चलें। वे 3 ज्ञानी पंडित उस राजा को उपहारों के साथ खोजने के लिए निकल पड़े और वो तारा उनके आगे आगे चला और जहां बालक यीशु था उस जगह में पहुंचकर ठहर गया। उन्होंने उस बालक को देखा और सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule
sleeping child you're holding is the great I उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रकट हुए, जो यहूदा के जंगलों में ये उपदेश देते थे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही थे जिनके विषय में नबी यशायाह ने कहा था, जंगल से पुकारने वाले की आवाज आई, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनके रास्ते सीधे कर दो। यूहन्ना ऊंट के रोम या बालों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहते थे। उनका भोजन टिड्डियां और वन का शहद था। यरूशलेम, सारी यहूदा और समस्त यरदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उनसे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आने वाले क्रोध से भागने के लिए सचेत किया? इसलिए अपने पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और ये ना सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि ईश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं। अभी भी पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। जो पेड़ अच्छे फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तुम्हें जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वे अपने हाथ में सूपा ले चुके हैं, जिससे वो अपना खलियान साफ कर देंगे और गेहूं को भंडार में जमा करके भूसे को कभी न बुझने वाली आग में जला देंगे। उस समय यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलील से यरदन के तट पर पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने यीशु की बात मान ली। यीशु बपतिस्मे के बाद जैसे ही जल से निकले, उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कबूतर के रूप में उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, मैं इनसे अत्यंत प्रसन्न हूं। ये कहानी है एक नन्हे भेड़ की जो अपने माँ के साथ रहता था, हंसता खेलता नाचता गाता और खुश रहता। एक दिन खेलते खेलते वो जंगल की ओर बढ़ गया और खतरे से अनजान वहाँ खेलता रहा। थोड़ी ही दूर झाड़ियों के पीछे एक भेड़िया उसे देख रहा था। उससे अनजान नन्हा भेड़ वहीं खेलता रहा और अचानक से भेड़िया झाड़ियों से निकलकर नन्हे भेड़ के ओर दौड़ने लगा। ये देखकर नन्हा भेड़ भागने लगा, चीखता हुआ अपनी माँ की ओर दौड़ने लगा। माँ, माँ मुझे बचाओ माँ। और जब माँ ने देखा कि उसके बच्चे को खाने के लिए भेड़िया उसका पीछा कर रहा है, तो माँ दौड़ते हुए वहाँ आई और नन्हे भेड़ को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। भेड़िए ने तुरंत माँ पर हमला कर उसे झपट लिया और माँ उसके चुंगलों से चीख कर कहने लगी,
तू भाग जा बेटा, भाग जा। और नन्हा भेड़ वहाँ से भाग गया। उसकी माँ ने अपना जीवन बलिदान करके उस भेड़ को बचा लिया। अब नन्हा भेड़ डरा, सहमा और अकेला जंगलों में भटकता रहा। माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ मुझे बचाओ। अपनी माँ के बिना रोता हुआ वो भेड़ जंगलों में घूमता रहा। उसको कुछ खरगोश खेलते हुए दिखे। उसको लगा कि शायद वो उसकी मदद करेंगे, ये उसके साथ खेलेंगे। उनके पास जब वो गया, उन खरगोशों ने उसे नहीं अपनाया। चला जा यहाँ से, चला जा, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ, जा यहाँ से, जा, चला जा। वो नन्हा भेड़ वहाँ से डर कर चला गया। उस नन्हे भेड़ को देखकर वहाँ एक बंदरों का झुंड था जो इसे सताने लगा, परेशान करने लगा। ए, पेड़ पे चढ़ेगा क्या? इधर आ, कहाँ घूम रहा है? इधर आ। उस बंदरों से बचकर डरा हुआ भेड़ आगे चला गया और आंसुओं के साथ डरा हुआ, सहमा हुआ नन्हा भेड़ जंगल में भटकता रहा। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, अब कौन मुझे बचाने वाला है? कौन मुझे प्रेम करेगा? कौन मुझे सहारा देगा? माँ, जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास कर रहा था, तब स्वर्गदूत उसकी सेवा कर रहे थे और जंगलों में यीशु मसीह ने उस नन्हे भेड़ की पुकार को सुना। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। फिर वो नन्हा भेड़ हंसता खेलता यीशु के पीछे हो लिया। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, तब वह 30 वर्ष का था और उस दौरान यीशु ने कई आश्चर्य के काम एवं चिन्ह दिखाए, जिनके द्वारा हम जान पाए कि वह प्रेमी, दयालु और सामर्थी परमेश्वर है।
हमें लहरें घेर रही हैं, हम डूब जाएंगे, हमें बचाइए। अब हम बच जाएंगे। गुरु, ये औरत व्यभिचार करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। हमारे नियम में मूसा ने आज्ञा दी है, ऐसी औरत को पथरवाह करके मार डालना चाहिए। पथरवाह करो, पत्थरवाह करो। आप क्या कहते हैं? तुम में से जिसने कभी कोई पाप न किया हो, वही उसे सबसे पहले पत्थर मारे। हे औरत, वो कहां गए? क्या तुझे दंड देने के लिए कोई नहीं रुका? यहाँ कोई नहीं? तो मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता। जा और अब फिर कभी पाप मत करना। ये कितने का है? हाँ, ये 10 दिनार का है। और ये वाला? ये 15 दिनार का है। 15 दिनार? अच्छा, वो लाल वाला दिखाओ। हाँ, वो। देखने में अच्छा है और बेहतर भी। बहुत अच्छा है। इसका दाम क्या है? ये 25 दिनार का है। 25 दिनार? 25। आप कितने में खरीदोगे? मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, खरीदूंगा बाद में। मैं तो किसी का यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। सुना है प्रभु यीशु यहाँ से गुजरने वाले हैं। प्रभु यीशु की आजकल काफी चर्चा है। तुम जानते हो यीशु ने फिर से चमत्कार किया है। अच्छा, कहाँ? क्या हुआ था? गलील के सामने गिरासीनियों के देश में जब यीशु वहाँ पहुँचे तब वहाँ एक मनुष्य बहुत सी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। उससे उन्होंने छुटकारा दिलाया और वो अच्छा भी हो गया।
12 साल से मैं वैदों के पीछे अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुकी हूँ, तो भी किसी के हाथों चंगी ना हो सकी और रोगी हो गई। अगर कोई मुझे यहाँ पहचान लेगा तो मुझे अशुद्ध पाकर दूर हटा देगा। अच्छा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम पड़ा? कुछ चरवाहे इस पूरी घटना को देख रहे थे और जब वो मनुष्य अच्छा हो गया तब उसने इस बात को सब जगह फैला दिया। ये शोर कैसा है? लगता है प्रभु यीशु आ गए। हम लोगों को चलना चाहिए। चलो चलो चलो। प्रभु 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 हमें सही मार्ग दिखाओ। प्रभु हमें छुटकारा दो प्रभु। प्रभु प्रभु आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु धन्य हो गया। प्रभु हमें आशीष दे प्रभु। अरे भाई, हमारे जीवन में सुख शांति दे प्रभु। आप लोग हटिए, प्रभु को रास्ता दीजिए। ये प्रभु का कैसा चमत्कार हो गया, मैं चंगी हो गई। मुझे किसने छुआ? हे रब्बी, आप देख रहे हैं भीड़, ये सब आप पर गिरे पड़े जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको किसी ने छुआ। नहीं नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। मेरे भीतर से सामर्थ्य निकला है। मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु, मैं 12 साल से लहू बहने के रोग से बहुत पीड़ित थी। आपको छूना चाहती थी ताकि चंगी हो जाऊं, और आज आपको छू के मैं चंगी हो गई। बेटी, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया है। कुशल से जा, परंतु इस बीमारी से बची हो। यीशु, यीशु, मेरी इकलौती बेटी को बचा ले प्रभु। मुझ पर दया करें। मेरी बेटी केवल 12 वर्ष की है और मरने को है। कृपा करके मेरे साथ चलिए। यार, मुझे बड़ा दुख है। यीशु, तुम्हारी बेटी नहीं रही, इसलिए गुरु को कष्ट ना दे। डरो नहीं, विश्वास रखो, वो ठीक हो जाएगी। तुम रो मत, वो मरी नहीं, वो तो बस सो रही है। बेटी उठो।
इसे कुछ खाने को दो। ध्यान रहे, यहां जो हुआ है किसी से न कहना। प्रभु यीशु ने और भी कई चिन्ह दिखाए जो यदि बताए जाए तो यह समय काफी नहीं। और यह चिन्ह इसलिए दिखाए गए कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। यही लोग हैं क्या जो पिछली बार आए थे, जो शैतान की वाट लगा रहे थे? अरे गजब, ये तो वही लोग हैं। अब जाने क्या तहलका मचाने वाले हैं, जाने क्यों कर रहे हैं ये। नाम से जी उठते हैं, सृष्टि भी करती यीशु की महिमा। यीशु के नाम से हर घुटने टिकते हैं, आंधी तूफान भी यीशु की सुनते हैं, मुर्दे भी उसके नाम से जी उठते हैं। सृष्टि भी करती यीशु की महिमा, यीशु के नाम से हर घुटने टिकते हैं। चमत्कारी परमेश्वर तू है महान, चमत्कारी परमेश्वर तू है महान, चमत्कारी परमेश्वर तू है महान, चमत्कारी परमेश्वर तू है महान। अंधों को आंखें दी यीशु ने, लंगड़ों को पैर दिए यीशु ने, बहरों को कान दिए यीशु ने, ये भी बोल उठे यीशु ने। अजी वो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजी वो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजी वो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजी वो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजी वो 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 तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजी वो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजी वो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजी वो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजी वो आने वाला है, अजी वो आने वाला है। It's been a crazy day. The guards took Jesus away and accused him of some awful things, none of which the truth would bring. They took him before the Roman governor and high priest, but none could find reason for the persecution to cease. So the people were allowed to make the decision. And instead of letting Jesus go free, they took him to Calvary for all to see.
तड़पाया गया, तरसाया गया, तू मारा गया, तू गाड़ा गया, मेरी खातिर सब कुछ सहता गया, मेरी खातिर सब कुछ सहता गया, सताया गया, तुझ जाना गया, मेरी खातिर सब कुछ सहता गया, मेरी खातिर सब कुछ सहता गया. So this is how it ends? Jesus dying on a cross in front of all of his friends? The sight of him, I can hardly bear. Maybe we should say a word of prayer. But according to the scriptures, this is the way it has to be. So now we must stand here and wait and watch in agony as our Lord and Savior dies for you and me. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. This is such a sad sight to see. Jesus, dead on the cross, right there in front of you and me. I can't believe he allowed himself to die. Get off the cross, we yelled, but he couldn't live a lie. But Joseph and Nicodemus, they loved him so that they made sure his body wasn't carried below. They took him down from the cross with such care because they knew that Jesus was a man of talents rare. They prepared his body with the time they had left before the Sabbath arrived and everyone had to rest. Then they carried him to a tomb for no one to exhume. Crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ताली बजा दे क्या? बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया सबने. यहाँ हर कोई सभा जाता है, हर कोई चर्च जाता है. अगर यहाँ कोई चर्च नहीं गया है, ये छोटी सी कहानी हमने ये बताई कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए और हमारे तरह मनुष्य के साथ खाया पिया और ही वॉज देयर, वो हमारे साथ थे, एक फेलोशिप, एक दोस्त बनकर थे. पर वो क्यों आए? परमेश्वर का राज्य लेके आने के लिए. और वही यीशु इस संसार में आए. पर हम इस संसार में उनको क्या किया? उनको हटा दिया, उनसे नफरत की कई लोगों ने,
उनको मारने की कोशिश की, पर फिर भी जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, तीसरे दिन यीशु मसीह फिर जी उठा। आमीन, हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए तालियां बजाते हैं। आज यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में है। आमीन, हालेलुया, आमीन। यही था छोटी सी कहानी। எத்தனை பேர் என்ஜாய் பண்ணீங்க? आप में से कितने लोग एंजॉय किए हैं? जोरदार तालियां। ஒரு நல்ல கரகோஷம் கொடுப்போம்। இன்றைக்கு ஒரு நாடகத்தை பார்த்தோம்। आज हमने एक नाटक देखा है ஒரு கதையை கேட்டோம்। और एक कहानी को हमने सुना है। ஆனா இது வந்து உண்மையிலே நடந்த ஒரு சம்பவம்। और ये जो कुछ भी आपने देखा और सुना, ये वाकई में हुआ है। மெய்யாகவே பிதா தன் ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார்। और ये सच्ची बात है कि पिता परमेश्वर ने अपने एक लौता बेटा, जिसका नाम यीशु मसीह है, हम सब के लिए दे दिया। மனுஷன் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பும்படியா, क्योंकि एक इंसान अपने पाप से पश्चाताप करे, मन फिराए। மனுஷனுடைய பாவம் இயேசுவின் இரத்தத்தினால மாத்திரம் தான் கழுவப்பட முடியும்। एक इंसान का पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही धोकर वो पाक और शुद्ध किया जा सकता है। அன்றைக்கு இயேசு பிறந்த நாள் அன்றும் அவர் வாழ்ந்து அற்புதம் செய்த நாளிலும் அவர் மரித்த நாளிலும் நிறைய பேர் பார்த்தாங்க அவரை। और उन दिनों में भी जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और जो जिंदगी उन्होंने जिए और जिस तरह से वो क्रूस पे मारे गए, उनकी मृत्यु भी हुई, वो सब लोग उन दिनों में उन्होंने अपने आंखों से देखा। அதில் நம்மை போல அநேகர் அதை விசுவாசித்து ஆண்டவரை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டாங்க। और उन दिनों में हमारे जैसे लोग जिन्होंने देखा, उन्होंने विश्वास कर कर यीशु मसीह को अपना लिया। ஆண்டவர் எப்படி மரித்து உயிரோடு எழுந்தாரோ அதே போல் இயேசுவை விசுவாசிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் மரித்தாலும் உயிரோடு எழுந்திருக்கிற ஒரு நித்திய ஜீவனை ஆண்டவருக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு। और पिता परमेश्वर ने जिस तरह से यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उसे मृतकों में से जी उठाया, वैसे ही जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके मृत्यु के बाद भी वो अपने साथ उठाएंगे। மரிச்ச பிறகு என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாது। हम में से किसी को नहीं पता कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது, लेकिन बाइबल हमें बताती है இயேசுவை நம்புகிறவன் जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, மரித்தாலும் பிழைப்பான்। जिसकी मृत्यु तो होगी लेकिन फिर भी वो जीवन पाएगा। நம்ம வாழ்க்கை இதோட முடிச்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வரல। और यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हमारी जिंदगी इसी पृथ्वी पर खत्म हो जाए। இந்த உலகத்தில் நம்ம மரித்த பிறகும் நித்தியமா ஒரு வாழ்வு நமக்கு உண்டு என்பதை கொடுக்கும்படியாக இயேசு பரலோகத்திலிருந்து பூலோகத்துக்கு வந்திருக்கிறார்। और यीशु मसीह स्वर्ग से इस दुनिया में, इस जगत में इसलिए आए कि भले ही हमारी मृत्यु इस दुनिया में हो जाए, लेकिन अनंत काल का जीवन हमें देने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। இயேசு வாழ்ந்த நாட்களில் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அவரை। और कई लोगों ने इस अवसर को खो दिया जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे। இன்னைக்கு நம்ம அந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது। और आज हम में से हम लोग इस अवसर को मिस या खो ना दें। இது ஒரு சிறிய எளிய நாடகமா நீங்க பார்த்தீங்க। और ये आप एक संदेश के रूप में, एक नाटक के रूप में आप सब लोगों ने देखा। ஆனா இது தேவ திட்டம் இதில் நம்ம காமிச்சிருக்கிறோம்। और ये परमेश्वर की मकसद और योजना है, हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया। நம்ம இப்ப ஜெபம் பண்ண போறோம்। और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। உள்ளத்திலிருந்து என்னோடு கூட நீங்களும் ஜெபம் பண்ணுங்க। और अपने मन से आप भी मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। அன்றைக்கு நடந்த அற்புதம் இன்றைக்கும் இயேசு நடத்துவார்। और उन दिनों में जो चमत्कार हुए, यीशु मसीह आज भी वो हमारे बीच कर सकते हैं। எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக इन सब बातों से बढ़कर இயேசு இந்த உலகத்துல பிறந்தார்। और यीशु इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया। நீங்க என்னோடு கூட ஜெபம் பண்ணும்போது உங்க உள்ளத்துல ஆண்டவர் பிறக்க உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார்। और जब आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपके मन में जन्म लें। கண்ணை மூடி ஜெபம் பண்ணுங்க। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। இயேசுவே, यीशु,
உம்முடைய பிறப்புக்காக நன்றி. आपके जन्म के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. நீ சர்வ வல்லமுள்ள தேவன். आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं. எங்களுக்காக இந்த உலகத்துல வந்தீர். आप हमारे लिए इस दुनिया में आए. என்னுடைய பாவங்களுக்காக நீர் மரித்தீர். आप मेरे पापों के लिए मृत्यु को पाए. என்னுடைய உள்ளத்துல வாரும். आप मेरे मन में आए. என்னுடைய பாவங்களை உம்முடைய இரத்தத்தினால் கழுவும். मेरे पापों को आपके लहू के द्वारा धोकर साफ करें. எங்களுக்கும் ஒரு அற்புதம் செய்யும் ஆண்டவரே. मेरे लिए भी मेरे जिंदगी में एक चमत्कार करें. இருளிலிருந்து எங்களுக்கு வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வாங்க. प्रभु जी मेरे जीवन के अंधेरे से मुझे रोशनी की ओर ले आए. உம்முடைய பிள்ளைகள் எடுத்த பிரயாசத்தின் பலன் और आपके बच्चों ने जो कुछ भी प्रयास किया है இயேசுவின் ரட்சிப்பு और प्रभु जी सिर्फ यीशु का उद्धार இயேசுவின் ஆசீர்வாதம் और यीशु मसीह का आशीर्वाद இயேசுவின் நித்திய ஜீவன் और यीशु मसीह का अनंत काल का जिंदगी பிள்ளைகளுக்கு அத்தனை பேருக்குள்ள நிறைவேறுவதாக. प्रभु जी आपके तमाम लोगों के ऊपर आ जाएं. எங்க உள்ளத்துல வாங்க ஆண்டவரே. आप हमारे मन में आए मेरे परमेश्वर. நாங்கள் நம்புகிறோம் और हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं. அந்த மேலான அன்புக்காக நன்றி. आपकी इस बड़े महान प्रेम के लिए धन्यवाद. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता. आमीन. आमीन. आमीन.